Hello, my dear students, and welcome to the next session of logical reasoning. Okay, as you all know, we are heading towards one of the most important chapters of logical reasoning, blood relations. Okay, blood relations. Now, tell me, what do you understand by this name, blood relations? Come on, I want inputs from you all. Yes, tell me, what do you know? What do you understand about this blood relations? Come on. Yes, I'm waiting. Nobody? Yes, okay, let me tell you. What is meant by blood relations? Blood relations, क्या हमने ये कई बार सुना है, जैसे कि हम बॉलीवुड मूवीज देखते हैं, हम बहुत सारा टेलीविजन देखते हैं, देन डेली सोप देखते हैं, तो उसमें हमें ये टर्म यूज किया होता है, क्या? खून का रिश्ता. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, खून ma'am. का रिश्ता. What is meant by this खून का रिश्ता? खून का रिश्ता means when we are connected with each other in the form of what? In the form of Blood. what? Blood. Yes, Blood relation. blood. खून का रिश्ता. इसका मतलब क्या है? When the entire group of people belong to one family. Now, belonging to one family means what? They have the same genes. Why do you have the same genes? Because the blood flowing in their body is related to each other. They belong to the same family tree. Do you understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Understand? Yes. Okay. Now, let me talk about a very bold topic. Let me discuss one bold topic with you. Now, why do people prefer surrogacy over adopting a child? Come on. Why? Because surrogacy में क्या होता है? हम जो बोलते हैं ना, खुद का खून वो होता है, right? Right? Yes. But when you adopt an orphan child, though it is one of the most noblest thing on this earth, सबसे best चीज अगर आप इस दुनिया में कुछ कर सकते हो तो किसी को अडॉप्ट करके उनकी लाइफ बेहतर बनाना है, right? Right? But why do people prefer surrogacy over this? Why? Come on, tell me. Yes, ma'am. Why do people prefer surrogacy over? Yes, 1 minute. Am I not audible? Yes, ma'am. अब आ रही है आपको मेरी आवाज? Yes, ma'am. Okay. Yes. Why do people prefer surrogacy over adoption? Is खून का रिश्ता, this blood relation. Okay. When a group of people belong to the same family tree, then it is known as that these people are related by blood. Now, how do these blood relations happen? सबसे पहले डिटेल में जाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे मैपिंग शीट में मेंशन कर देंगे कि हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 20, ब्लड रिलेशंस, पेज नंबर 236 ऑफ योर मॉड्यूल्स. कम ऑन, क्विकली टेक इट डाउन. डन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Go ahead. Yes. What are blood relations? Tell me, what do you mean by blood relations? Blood relations कैसे बनते हैं? Genetic. Genetic. Okay. Biological. Biological. Okay. Okay. Now tell me one thing. Do you have a choice कि आप कौन सी फैमिली में बर्थ लेने वाले हो? Do you have a choice? No, ma'am. No, So ma'am. can you say that blood relations are by birth? Yes. By Can you birth. say that? Yes, ma'am. Blood relations are by birth. Okay. अब क्या जब हम शादी करके किसी की फैमिली में जाते हैं, okay, so are we considered a part of that family? Yes, ma'am. जो children, जो बच्चे पैदा होते हैं, are they considered a part of that family? Yes, ma'am. So can I say blood relations have two origins, one birth and one marriage? Yes or no? Yes, Yes. ma'am. तो जो रिलेशन बर्थ से बनते हैं और शादी से बनते हैं, इन दोनों को क्या कहा जाता है? ब्लड रिलेशंस कहा जाता है. Yes or no? Yes, ma'am. Yes or no? Yes, ma'am. Blood relations are relations which are created either by marriage or by birth. Picture clear? Yes. Yes, ma'am. चले आगे. Okay. Yes, ma'am. Yes. आगे. To remember easily the relations,
मैंने क्या किया है, इन सारे रिलेशंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। वो कैसे, व्हाट आर दे? अब अगर हम देखें तो जब भी छुट्टियां होती थी, अब तो ठीक है आप लोग 12th में जाओगे, देन यू विल हैव योर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, कॉलेज लाइफ चालू होगी, तो ये मई के महीने की छुट्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा, वो चला जाएगा, राइट? पर अब तक क्या होता था, मई की छुट्टी, सो यू गो टू योर ननिहाल, राइट? ननिहाल मतलब क्या होता है, नानी का घर, नानी को घर, नानी का घर मतलब क्या होता है, मम्मी का घर, अपने मम्मी का घर, राइट? तो अगर हम लोग देखें तो यू हैव अ फादर, यू हैव अ मदर, द रिलेशंस व्हिच आर विद योर फादर, फादर को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पैटर्नल साइड, maternal, और मम्मा को क्या कहा जाता है, maternal, अंडरस्टैंडिंग? सो जो रिलेशंस अपने पापा की वजह से होते हैं उनको कहा जाता है पैटर्नल रिलेशन, और जो रिलेशंस अपनी मम्मा की वजह से होते हैं उनको कहा जाता है मैटर्नल। maternal side, इजीली समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगी। पापा के भाई को कहा जाता है काका, यस और नो? चाचा, yes ma'am, चाचू, यस और नो? yes ma'am. ma'am, और मम्मा के भाई Yes. को क्या कहा जाता है, मामा, mama, अंडरस्टैंडिंग? yes So ma'am, kaka is your paternal relation and mama is your maternal relation. Done. In the same way, पापा के पापा को कहा जाता है दादा, dada, yes ma'am, और yes ma'am, मामा के पापा को कहा जाता है nana, नाना, right? yes Right? yes So ma'am, you have paternal relation, you have maternal relations. ठीक है, और एक चीज से इंडिया में जॉइंट फैमिली का कल्चर अभी भी है, अभी भी मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली है, अंडरस्टैंडिंग? बोथ माय मैटरनल एंड माय पैटर्नल फैमिली। व्हाट इज दिस जॉइंट फैमिली? जॉइंट फैमिली मतलब हमारे मम्मी पापा, Grand. उनके बच्चे, फिर काका काकी, उनके बच्चे, दादा दादी, हम लोग सब एक साथ मिलके रहते हैं, हाँ या ना? yes Yes. ma'am, yes ma'am, तो जब हम ब्रदर और सिस्टर बोलते हैं अपने कल्चर में, जब हम ब्रदर बोलते हैं तो व्हाट डू यू मीन, मेरा सगा भाई, फिर मेरे काका का लड़का, मेरे चाचू का लड़का, हाँ या ना? yes yes ma'am, अगर हम सिस्टर बोलते हैं तो इसका मतलब क्या, मेरी बहन, मेरे काका की बहन, मेरे चाचू की बहन, काका की बेटी, मेरे चाचू की बेटी, हाँ या ना? yes ma'am, yes, Right. But actually, technically, when we speak about cousins and siblings, there's a difference. Okay? When we say brother or sister, for logical reasoning, इसका मतलब क्या है, सिर्फ अपने siblings, siblings मतलब सगे भाई और सगे सगी भाई बहन, understanding? yes yes ma'am, ma'am, और cousins मतलब क्या, अपने दादा चाचा के का, बेटे, बेटियां, अपने चाचू की बेटी और बेटियां, understanding? yes ma'am, तो मैंने बहुत ही छोटी समरी बनाई है पैटर्नल रिलेशंस की, मैटर्नल रिलेशंस की और अपने सिबलिंग्स और कजिन्स की। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू क्विकली टेक दिस डाउन इन योर नोटबुक्स, ओके? अब अपनी टेक्स्ट बुक में है क्या, है, बट इतने एप्ट वे में और इतने इजी मैनर में लिखा हुआ नहीं है, तो अगर आपको इजीली इस चैप्टर को कवर करना है तो आई शुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली टेक दिस डाउन इन योर नोटबुक्स। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में लगता है अपना असली दिमाग, ओके? यस, सो रिलेशंस ऑफ अ पैटर्नल साइड, पहले फादर, अपने पापा के पापा, पैटर्नल मतलब पापा। सो अभी मैं आपके साथ जो रिलेशंस डिस्कस करूंगी वो सारे के सारे पापा के साइड के रिलेशंस होंगे, ओके? आज का लेक्चर थोड़ा सा एक्सटेंड होने की पॉसिबिलिटी है, तो प्लीज पूरे कंसंट्रेशन के साथ, मुझे रिपीट करने मत लगाना, पूरे होशो हवास के साथ आई एक्सपेक्ट यू ऑल टू फोकस ऑन दिस लेक्चर, ओके? पापा के पापा को क्या कहा जाता है, दादा, उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ग्रैंडफादर। grandfather, पापा की मम्मा को कहा जाता है दादी, मतलब ग्रैंडमदर। पापा's ब्रदर, राइट? ब्रदर अब दो प्रकार के हो सकते हैं, कम ऑन, फुल फोकस हियर। पापा के भाई जो है वो दो हो सकते हैं, एक बड़े भाई, एक छोटे भाई, हाँ या ना? yes ma'am, बड़े भाई को यूजुअली कहा जाता है काका और छोटे भाई को कहा जाता है चाचा या चाचू, हाँ या ना? yes ma'am, तो पापा's brother means काका, चाचा, चाचू, ओके? ना पापा's sister, पापा की बहना जो छुट्टियों में अपने घर पे आती है उनको क्या कहा जाता है, बुआ, बुआ, कोई, राइट? yes ma'am, राइट, दैट इज आंट। इंग्लिश में क्या कहा जाता है,
आंट। Aunt. भाई को कहा जाता है, पापा के भैया को कहा जाता है अंकल, और बहन को कहा जाता है आंट। ओके, चिल्ड्रन ऑफ अंकल, चिल्ड्रन ऑफ अंकल मतलब कजन। अंडरस्टैंडिंग? जैसे काका के बच्चे और चाचू के बच्चे, उनको क्या कहा जाता है? सिबलिंग्स या कजिन्स? Cousins. कजिन्स कहा जाता है। ओके, यस, वाइफ ऑफ अंकल, जैसे काका की काकी और चाचू की चाची, उनको क्या कहा जाता है? आंट। फिर Aunt. चाहे वो बुआ हो, चाहे चाची हो, चाहे काकी हो, सबको एक ही कैटेगरी, एक ही नाम में बोला जाता है, आंट। राइट? इसलिए बोलते हैं ना कि हमारे हिंदी में जो रिस्पेक्ट है, वो रिस्पेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके लिए सब लोग एक जैसे हैं। राइट? हम क्या कहते हैं यूजुअली? राइट, व्हेन आई एम स्पीकिंग टू माय ब्रदर, मैं क्या कहूंगी? तुमने खाना खाया क्या? राइट? बट व्हेन आई एम स्पीकिंग टू माय ग्रैंडफादर, हाउ विल आई से? आपने खाना खाया, राइट? बट इन इंग्लिश Yes. लैंग्वेज, have you eaten the food? Be it your grandfather, be it your father, be it your brother, right? Yes, Right? ma'am. तो जब हम तहजीब की बात करते हैं, तहजीब जो हमारे लैंग्वेज में है, जो हमारे संस्कृति में है, वो कहीं नहीं, फिर चाहे वो वेस्ट हो, ईस्ट हो, साउथ हो या नॉर्थ हो, राइट? Okay, yes, so let's come back to our syllabus, that is our blood relations. Yes, why am I taking you in so detail? क्योंकि हमारे बेसिक्स हमेशा क्लियर होने चाहिए, तभी तो हम दूसरे स्टूडेंट से क्या होंगे? डिफरेंट। दूसरे स्टूडेंट से क्या होंगे? स्मार्टर। ओके, यस, कम बैक। पैटर्नल साइड, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? दादा, ग्रैंडफादर, दादी, ग्रैंडमदर, काका, चाचा, चाचू, अंकल, इनकी बीवियां, आंट, देन पापा की बहन, फुई, राइट? शी इज आल्सो नोन एज आंट, और इनके बच्चों को कहा जाता है कजिन्स। एनी डाउट्स? No, ma'am. यस, फर्दर, यस, हस्बैंड ऑफ आंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बुआ का हस्बैंड, फुई का हस्बैंड, राइट? फूफा, राइट? फूफा जी, उनको क्या कहा जाता है इंग्लिश में? अगेन, अंकल। Yes, now let's discuss the maternal side. Maternal side मतलब नानी का घर। हम जब नानी के घर के बारे में बात करते हैं, तो हम मामा, मामी, नाना, नानी और उनके बच्चों के बारे में बात करते हैं, और मासी, do not forget, right? मामा की बहन भी होती है अपने नानी हाउस में, right? Yes, so mama's Yes, father, ma'am. नाना, उनको क्या कहा जाता है? सिर्फ ग्रैंडफादर नहीं, मैटरनल ग्रैंडफादर, पापा के पापा को भी कहा जाता है ग्रैंडफादर, ममा के पापा को भी कहा जाता है ग्रैंडफादर। तो इनको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो ममा के ग्रैंडफादर को एक एक्स्ट्रा नाम है, एडजेक्टिव है, क्या कहा जाता है? मैटरनल ग्रैंडफादर। अंडरस्टैंडिंग? ओके, तो पापा की ममा को क्या कहा जाएगा? ग्रैंडमदर, बट मैटरनल ग्रैंडमदर। लाइक नाउ पापा's ममा's ब्रदर, ममा की भाई को क्या कहा जाता है? मामा, राइट? बट अपने इंग्लिश लैंग्वेज में मामा, काका, चाचा, चाचू सब अंकल है, राइट? तो इनमें अलग फर्क कैसे करेंगे ब्लड रिलेशन समझने के लिए? मैटरनल अंकल, ममा का भाई, ममा के भैया को हम क्या कहेंगे? मामा, तो हम लोग क्या कहेंगे? मैटरनल अंकल। एवरीवन, आर यू विद मी? Yes, ma'am. ओके, आगे। ममा की बहन जो हमें सबसे ज्यादा लाड करती है, वो कौन होती है? Masi. मासी। मासी, मासी को भी हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंट। चाहे वो बुआ हो, चाहे वो मासी हो, चाहे काकी हो, चाहे चाची हो, सब लोग आंट। इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम एक्चुअली उसको मैटरनल आंट लिखते हैं। यहाँ पे सिर्फ आंट लिखा हुआ है। एक्चुअली मैटरनल आंट ये अपने समझने के लिए है, बट यूजुअली आंट ही बोला जाता है। बट हम लोग मासी को क्या कहेंगे ब्लड रिलेशन समझने के लिए? मैटरनल आंट। आगे, चिल्ड्रन Aunt. मैटरनल आंट मतलब क्या? मासी के बच्चों को, मासी मामा के के लिए। बच्चों को क्या कहा जाता है? क्या कहा Cousin. जाता है? कजिन। Cousin. ओके, आगे, वाइफ ऑफ मैटरनल आंट, अगेन इसको Right? क्या कहा जाता है? वाइफ ऑफ मैटरनल आंट मतलब मामा की बीवी। मामा की बीवी मतलब क्या? Sorry, it should be wife of maternal uncle. Uncle. Yeah. It should be wife of maternal uncle. Uncle. तो मामा की बीवी, मामा की वाइफ मतलब मामी,
मामी को क्या कहा जाता है? आंट, बट डिस्टिंग्विश करने के लिए मैटरनल आंट। ओके, मतलब स्पेसिफिकली अगर आप देखो तो पापा की बहन, ममा की बहन, बुआ और मासी, ये दोनों को क्या कहा जाता है? आंट। अंडरस्टैंडिंग? काकी, चाची, इनको क्या कहा जाता है? आंट, सिर्फ आंट। और मामी को कहा जाता है मैटरनल आंट। समझ में आया? मतलब ममा के साइड के सारे रिलेशंस को मैटरनल कहा जाता है, सिर्फ मासी को आंट। क्लियर? Yes, ma'am. एवरीवन? फिर आगे रिलेशन विद सिबलिंग्स। ओके, मेल सिबलिंग, अपने भाई, सगे भाई को कहा जाता है ब्रदर, बहन को कहा जाता है सिस्टर, और बाकी सब अब इनके स्पाउसेस मींस बेटर हाफ्स। ओके, अब भाई की वाइफ मतलब क्या? Sister-in-law. भाभी. भाई की वाइफ मतलब भाभी, भाभी को क्या कहा जाता है? सिस्टर इन लॉ, राइट? एक्चुअली सिस्टर है इन लॉ। अंडरस्टैंडिंग? ना, सिस्टर्स हस्बैंड मतलब क्या? अपनी बहन के हस्बैंड को हम लोग क्या कहते हैं? जीजू, राइट? मतलब हमारे जीजू मतलब क्या? भाई समान, राइट? भाई नहीं, भाई समान, ब्रदर इन लॉ। अंडरस्टैंडिंग? ओके, Yes, ma'am. आगे आगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ब्रदर सिस्टर मतलब अपने भाई बहन के बच्चे, अपने सगे भाई बहन के बच्चे। ओके, अब बच्चों में क्या आता है? सन भी आता है, डॉटर भी आता है, हाँ या ना? Yes, sir. सन को कहा जाता है मतलब भांजे, भांजे को कहा जाता है नेफ्यू, और भांजी को कहा जाता है नीस। Niece. क्लियर एवरीवन? सो Yes, ma'am. पैटर्नल रिलेशन को अगर हम देखें, यू वांट मी टू जस्ट क्विकली गो थ्रू? यस, अगर हम पैटर्नल रिश्तों को देखेंगे तो कौन कौन आता है? ग्रैंडफादर, दादा दादी, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, Grandmother. देन अंकल आंट, राइट? काका चाचू, राइट? एंड चाचा, राइट? देन उनकी बहन बुआ, बुआ. फिर क्या आती है? उनकी वाइफ्स और उनके हस्बैंड्स, काकी, चाची और फूफा जी, राइट? फिर आते हैं कजिन्स। ओके, यस। फिर आ गया मैटरनल रिश्ते। मैटरनल रिश्तों में अगर हम देखें तो क्या है? अगर हम मैटरनल रिश्ते देखें तो नाना नानी, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडमदर। ओके, देन मामा मामी, Mommy. मैटरनल अंकल, मैटरनल, Maternal aunt. उनके बच्चों को कहा जाता है कजिन्स, और मासी को क्या कहा जाता है? आंट। Aunt. ओके, क्लियर? यस, आगे अब सिबलिंग्स। सिबलिंग्स में अगर हम देखें तो क्या आता है? भाई बहन, क्लियर? फिर भाई की बीवी भाभी, सिस्टर इन लॉ, जीजू ब्रदर इन लॉ। ओके, फिर भाई बहन के बच्चों को, बेटे को कहा जाता है नेफ्यू और बेटी को कहा जाता है नीस। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, यस। तो चलते हैं आगे। आगे ये जो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फुल फोकस मैम की तरफ। यस, अब मेल सिबलिंग्स, अब हम रिलेशंस समझेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, यस, हम जहां खड़े हैं, ओके, वो अपना कौन सा जनरेशन है? हियर, Third. थर्ड जनरेशन, हम, राइट? फिर हमारे ऊपर कौन है? पापा मम्मी। Mommy, papa. पापा मम्मी के ऊपर कौन है? खाला दादा दादी। Dada, dadi. क्लियर? और हमारे नीचे मतलब अपने बच्चे, हाँ या ना? Yes, ma'am. तो ये जनरेशन समझते हैं। तो हमारे जनरेशन में कौन आता है? हम, भाई बहन, कजिन, भाई, राइट? भाभी. राइट? फिर इनके बेटर हाफ्स मतलब भाभियां और जीजू, हाँ या ना? Yes, ma'am. हाँ या ना एवरीवन? Yes, ma'am. फिर अपने ऊपर के जनरेशन में कौन आता है? मम्मी पापा, उनके भाई बहन मतलब काकी, Uncle, काका, चाचू, चाची, चाचा, बुआ, ये सब नो, बुआ, फूफा, मासी और उनके मामा. हस्बैंड मासा जी, ये सब नो। Yes, ma'am. फिर उनके ऊपर कौन आता है? मम्मी पापा के मम्मी पापा, नाना Dada, नानी, dadi. दादा दादी, हाँ या ना? Yes, ma'am. और हमारे नीचे कौन आता है? नेक्स्ट जनरेशन में हमारे बच्चे मतलब सन और डॉटर, या तो अपने भाई बहन के बच्चे, उनको क्या कहा जाता है? Nephew and niece. क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. 100% Yes, ma'am. श्योर? Yes, ma'am. चले आगे।
Yeah. नेक्स्ट सेशन जो मैं डिस्कस करूंगी वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यस, जो आपके फ्रेंड्स आज का सेशन अटेंड नहीं कर पाए उनको प्लीज बोलिएगा ताकि एटलीस्ट वीडियो तो देख ले फॉर श्योर. ओके, यस, आगे ट्रिक्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फुल फोकस मेरी तरफ. यस, हाउ टू डिपिक्ट जेंडर्स. अगर मैं आपको बोलती हूँ एक्स वाई इज इन रिलेशन विद मी, तो क्या एक्स और वाई से हमें पता चलता है कि वो मेल है कि फीमेल है? नो. No, सो ma'am. वी आर गोइंग टू असाइन देम साइंस ताकि हमको क्लियरली समझ पाए कि हम मेल की बात कर रहे हैं या फीमेल की. सो अगर मेल हो तो हम उसको लिखेंगे प्लस. क्लियर? Yes. और अगर Yes, ma'am. फीमेल हो तो हम उसको लिखेंगे माइनस. क्लियर? कैसे करना है ये सैंपल क्वेश्चंस में आपको समझ में आएगा. देन जैसे यहाँ पे आपको समझेगा रिलेशन बाय मैरिज. अगर मैं बोलूं रिलेशन बाय मैरिज राधा कृष्ण हस्बैंड वाइफ, ओके, तो वो सेम लेवल पे होते हैं. व्हाई? बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम जनरेशन. यस और नो? Yes, ma'am. तो जब अगर मैं सेम जनरेशन की बात करूं तो वो मैं एक लाइन में लिखूंगी. राइट? अब हस्बैंड वाइफ बिलोंग टू द सेम जनरेशन, राइट, तो मैं बाजू में लिखूंगी. तो अगर मैं राधा कृष्ण की बात करूं तो आगे हस्बैंड वाइफ, यस, तो मैं क्या उनको सेम लाइन में लिखूंगी? यस. Yes, ma'am. अब अगर आपको सिंबल्स याद है, ऊपर देखो, मेल के लिए लिखेंगे हम प्लस और Plus. फीमेल के लिए माइनस. अब राधा इज व्हाट? फीमेल, Female. तो इसको लिखेंगे माइनस, Minus. इसको लिखेंगे प्लस. क्लियर? Plus. Yes, ma'am. क्लियर? श्योर? आगे Yes, ma'am. आगे रिलेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन. अब मुझे बताओ, क्या पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन एक सेम जनरेशन को बिलोंग करते हैं? No, ma'am. नो, दे डू नॉट बिलोंग टू द सेम जनरेशन. पापा मम्मी एक जनरेशन में और बच्चे नेक्स्ट जनरेशन में. तो इसको हम लिखेंगे कैसे? ओके, से फॉर एग्जांपल स्तुति एंड व्रज. ओके, स्तुति एंड व्रज कौन है? मेरे बच्चे. मेरी बेटी का नाम है स्तुति और मेरी लड़की का नाम है व्रज. उनके पेरेंट्स कौन है? पीयूषा एंड भाविक. अंडरस्टैंडिंग? सो पीयूषा एंड भाविक एक जनरेशन में आएंगे. क्विकली, डू नॉट फॉरगेट, हमको पहले साइंस लिखना है. पीयूषा इज फीमेल एंड भाविक इज मेल. अंडरस्टैंडिंग? और Yes, इनमें ma'am. इनके दो बच्चे हैं, स्तुति, व्रज. राइट? सन इज ऑलवेज व्हाट? Plus. Male. यस, व्रज सन इज ऑलवेज व्हाट? मेल. तो उसको कैसे Male. नोट करेंगे? Plus. और स्तुति को लिखेंगे माइनस. क्लियर? Yes, ma'am. सो ये एक जनरेशन और ये एक जनरेशन. किसी को कोई डाउट? No. No, ma'am. श्योर? आगे रिलेशनशिप बिटवीन सिबलिंग्स, वेरी 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 नेसेसरी. अगर मैं बोलूं कि स्तुति एंड व्रज आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स तो कैसे लिखेंगे? अब स्तुति व्रज भाई बहन है, अग्रीब भाई बहन है, तो इनके पेरेंट्स मतलब सेम है ना? Yes, ma'am. बराबर है ना? तो आए यहाँ पे पेरेंट्स, इस प्रकार से लिखा जाएगा. अंडरस्टैंडिंग? मुन्ना Yes, सर्किट, अंडरस्टैंडिंग? ओके, सेम चीज. आगे शैल वी गो अहेड नाउ? क्या ये सबको क्लियर है? मेल को लिखेंगे प्लस, फीमेल को लिखेंगे हम लोग माइनस. ओके, अब सेम जनरेशन एक लाइन में लिखा जाएगा. हम हस्बैंड वाइफ अगर बोलते हैं तो वो डैश लिख के सेम लेवल पे लिखा जाता है. देन अगर हम बोलते हैं पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन तो एक जनरेशन उसके नीचे वाला जनरेशन. अगर मैं सिबलिंग्स की बात करूं तो वो हमेशा एक जनरेशन में रहेगा और उनको हमेशा कॉमन पेरेंट्स रहेंगे. हाँ या ना? Yes. Yes, ma'am. Yeah. Shall we go ahead? Yes, let's go to the next slide. Let's go to the problems. अब my dear students, मैंने क्या किया है, आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस को थोड़ा सा शेफल किया है उनकी डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से. ओके, तो आपके क्वेश्चन नंबर ऑफ द मॉड्यूल हैज बीन रिटन हियर. उसके हिसाब से आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को रेफर करना है जिस सीक्वेंस में मैं आपको बताती हूँ. क्लियर? यस, तो कम टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है? If X is the brother of son of Y's son, how is X related to Y? ओके, अब पढ़ने जाओ तो बहुत ही कंफ्यूजन लगता है, तो हम इसको क्या करेंगे? हम इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे ताकि हम सिस्टमैटिकली और करेक्टली इनका रिलेशन आइडेंटिफाई कर सके. सो कम ऑन एवरीबॉडी विथ मी.
क्या बोला गया है इधर? X is the brother of son of Y son. तो चलो मैं शुरुआत करती हूँ X से। एवरीवन, मैं शुरुआत करती हूँ X से। तो क्या बोला गया है? X is the brother, मतलब X कौन है? ब्रदर है। Brother. मतलब X का जेंडर क्या है? मेल है। Male. Yes or no? Yes, तो ma'am. पहले हम लोग प्लस साइन डिनोट कर देते हैं। क्लियर? Yes, Yes, ma'am. बोला है इज द ब्रदर ऑफ सन ऑफ वाई सन, Y. मतलब यहाँ पे एक सन है, करेक्ट? सन 1 बराबर है, Yes, sir. ये इसका भाई है। ओके, ऑफ whom? ऑफ Y वाई son. सन, मतलब यहाँ पे वापस एक जनरेशन आएगा, राइट? जस्ट 1 मिनट माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखती हूँ मैं। सो दैट X इज व्हाट? ब्रदर, मेल, बराबर है। फिर एक सन है, इसका जेंडर भी वापस मेल है, सन है ना, बराबर है? Yes, ma'am. ये है, यहाँ पे फिर से एक सन है, राइट? मेल है, बराबर। वाई कौन है? वाई यहाँ पे है, करेक्ट? यस और नो? Yes, sir. अब क्या बोला है, क्वेश्चन को ठीक से वापस पढ़ो। एक्स इज द ब्रदर, ठीक है, एक्स ब्रदर है, ब्रदर है मतलब सेम जनरेशन में है, इसलिए मैंने इसके बाजू में लिख दिया। ओके, फिर एक्स इज द ब्रदर ऑफ सन ऑफ वाई सन, तो यहाँ पे एक सन आ गया, उसका उसका और वहां पे उसके फादर है वाई। यस और नो? अंडरस्टैंडिंग? मतलब ये एक जनरेशन, ये एक जनरेशन और ये एक जनरेशन, हाँ या ना? Yes, ma'am. अब हमको क्या करना है? x और y के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। x इज रिलेटेड टू y। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ इज x रिलेटेड टू y? x का रिलेशन y के साथ कैसा है? तो x y का कौन है? चलो बताओ। ये जनरेशन, ये मतलब ये हमारा जनरेशन, Grand. ये पापा मम्मी का जनरेशन, और ये उनके ऊपर वाला जनरेशन। बताओ चलो। Grandson. ग्रैंड Son. ग्रैंडसन, अगर हम ऑल्टरनेटिव Son. देखते हैं तो अब अगर हम देखते हैं हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, See. उन्होंने क्या पूछा है? एक्स का वाई के साथ रिलेशन क्या है? एक्स के वाई कौन है? क्या वो दादा. दादाजी है? Grandson. Yes, sir. ग्रैंडसन। तो एक्स वाई का कौन है? ग्रैंडसन। Grandson. Grandson. अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करती हूँ। अगर मैं आपको पूछती हूँ कि हाउ इज वाई रिलेटेड टू एक्स, तो आपका आंसर क्या रहेगा? Grandfather. Grandfather. ग्रैंडफादर। वेरी 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 क्लियर। Yes, Yes, ma'am. ma'am. किसका रिलेशन किसके साथ पूछ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज ड्रॉ दीज डायग्राम्स इन योर नोटबुक्स विद द परफेक्ट क्वेश्चन नंबर गिवन टू यू आल्सो। ओके, यस, क्लियर? ये आपको बाद में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी और आप मुझे हमेशा याद करेंगे इस चीज के लिए। Yes, let's go ahead to the next question. Kindly do not disturb the class. आज का क्लास थोड़ा सा क्रिटिकल भी है और इम्पोर्टेंट भी है। Yes, अगर सेशन थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ तो प्लीज कोऑपरेट करना। ओके, आज हमको ब्लड रिलेशंस फिनिश करना है, वो भी अच्छे से। Yes, come to question number 5 of your module. क्या बोला गया है आपको? Yes, pointing to a man in the photograph, Asha said, his mother's only daughter is my mother. आशा ने क्या कहा? एक मैन को एक पिक्चर दिखाई, फोटो दिखाया, पुराना एल्बम खोल के बैठी थी आशा। पुरानी, मैं आशा हूँ, ओके, मैं पुराना एल्बम खोल के बैठी थी और वहां पे एक फोटो मेरे हाथ में आता है और उस फोटो में एक आदमी को देख के मैं बोलती हूँ that his mother's only daughter is my mother। तो हमें अब क्या करना है? उनके बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्या बोला गया है? his mother मतलब man's mother, हाँ या ना? मतलब there's a man, yes or no? If there's Yes, a man, ma'am. he has a gender that is male, right? His mother मतलब next generation हो गया, हाँ या ना? Yes, ma'am. अगर मैं मदर बोलूं मतलब क्या हुआ? माइनस साइन, फीमेल है, बराबर है? His mother's only daughter, अब बता, मदर की डॉटर मतलब अगर मैन की मदर है, बराबर है ना? मतलब डॉटर कौन है? डॉटर नेक्स्ट जनरेशन में आ गई, बराबर है? Sister. Yes, Brother and ma'am. sister. Yes, very good. अब आगे उन्होंने क्या बोला है? His mother's only daughter is my mother. My mother. मतलब ये जो डॉटर है वो किसकी मदर है? Asha. Yeah.
आशा की मदर है। बराबर है? Yes, ma'am. यस और नो? तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? मैन और आशा के बीच का रिलेशन। कम ऑन, पहले हम जनरेशन आइडेंटिफाई कर देते हैं। ये एक जनरेशन हुआ, ये एक जनरेशन हुआ और आशा का जनरेशन हुआ। हाँ या ना? Yes, ma'am. अब हमको रिलेशन किसके बीच में देखना है? आशा का आशा मैन के है। साथ रिलेशन। आशा मैन से कैसे रिलेटेड है? Niece, कम ऑन। niece. Asha is niece and पहले हम man लोग is हमारे maternal लैंग्वेज में uncle. रिलेशन समझते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं। अगर हम देखते हैं तो आशा की मम्मी का भाई है मैन। हाँ या ना? Yes, Yes, ma'am. आशा की मम्मी है, का भाई है, मतलब मैन मामा है। हाँ या ना? Mama. Yes, Yes, ma'am. ma'am. बराबर है, मामा है। अब हमको किसका रिलेशन देखना है? आशा का रिलेशन Yes. मामा के साथ। तो मैं- बहन की बेटी को क्या कहा जाता है? नीस Niece. कहा जाता है। तो व्हाट इज द रिलेशन? Niece. इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. अगर आशा की जगह श्रेयस होता तो अपना आंसर क्या होता? Nephew. नेफ्यू। वेरी गुड। अगर मैं ऐसे पूछती कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ मैन टू आशा? Maternal uncle. Very good, my dear students. Kindly draw this diagram in your notebook with the respective question number and the sequence. It's going to be very helpful to you. Clear? Yes, ma'am. Okay, let's go ahead. Question number 7 of your modules. Yes. Your mother's husband's sister is my aunt. A man said to a lady, your mother's husband's sister is my aunt. How is the lady related to that man? Okay, fine. First of all, हम लोग क्या करेंगे? इसको diagrammatically represent करेंगे और फिर समझेंगे. Yes, everybody. Yes, a man said to a lady. Okay, मतलब हम lady के relations पहले समझ रहे हैं, फिर man का relation हम बाद में देखेंगे. Your mother, मतलब there's a lady, yes or no? Yes, ma'am. If there's a lady, what is going to be a sign? Minus. Very good. Your mother, that is her mother. Mother मतलब minus sign. Your mother's husband. Husband. Husband, mother's husband. मतलब कौन हुआ? अपनी मम्मी का पापा. husband. मतलब कौन Husband. हुआ? Papa. पापा. तो ये same generation है? Yes, ma'am. मैं यहाँ पे वो जो वर्ड यूज करते हैं वही यूज करी. हस्बैंड. हस्बैंड मतलब जेंडर प्लस. Plus. राइट? योर Yes, ma'am. मदर्स हस्बैंड सिस्टर. Sister. अब मुझे बताओ, पापा की बहन को क्या कहा जाता है? Aunt. बुआ है ना अपनी. बराबर Yes, है, तो ma'am. सेम जनरेशन को बिलोंग करते हैं, तो ठीक है. सिस्टर. ओके, इसको मैं प्लस साइन दूंगी. हाउ? तो क्या बोला है? योर Ma'am. मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माय आंट. ये आंट है. किसकी आंट है? Man. मैन की आंट. Man की. अब जनरेशन समझते हैं. जनरेशन क्या आता है? इफ दिस इज माय जनरेशन, मेरे ऊपर की जनरेशन में मदर फादर आंट भी आएंगी. बराबर है? मतलब मैं नीचे के जनरेशन को बिलोंग करती हूँ. हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. राइट? Yes, ma'am. एवरीवन. Yes, तो ma'am. मतलब लेडी और मैन सेम जनरेशन को बिलोंग करते हैं. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Do they belong to the same generation? Yes, ma'am. So what will be the relation between the lady and the man? Brother, sister. How is the lady related to the man? Question समझिए. Lady related to man. Come on. Sister. Sister. So D is the right answer. Is it interesting? Yes, ma'am. Shall we move ahead? Yes, ma'am. Yes, Let's ma'am. go to the next question. Question number 1 of your modules. Everyone. A man pointing to a photograph says, what does he say? The lady in the photograph is my nephew's maternal grandmother. How is the lady in the photograph related to the man's sister who has no other sister? Okay, ठीक है. पढ़ने में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे? डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, तो चलो समझते हैं क्या बोला है हमें. Okay, just 1 minute, my dear students. Just 1 minute.
Okay. Yes. The lady in the photograph is my nephew's maternal grandmother. Okay, so there's a lady. लेडी है मतलब कौन सा साइन? माइनस या प्लस? Minus. कमान मुझे आवाज नहीं आ रही. माइनस या प्लस? Minus. Okay, yes. The lady in the photograph is my nephew's maternal grandmother. Nephew मतलब क्या? भांजा, आंटी, भाई बहन के बेटा. 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 हाँ या ना? Yes, ma'am. या बेटी का बेटा. ठीक है, तो इसको क्या है? Either son और daughter. बराबर? इनका son. मतलब क्या है? Nephew. तो प्लस साइन दिया मैंने. बराबर है ना? He is the nephew. Okay. The lady in the photograph is my nephew's maternal grandmother. अब बड़ा इंटरेस्टिंग है ये. तो इसका एक जनरेशन हुआ, इसका एक जनरेशन हुआ. हाँ या ना? Yes, ma'am. ठीक है. तो अब हमने जनरेशन समझ लिया. अब हम रिलेशन करेंगे. Is my nephew's maternal grandmother. Maternal grandmother मतलब क्या? नानी. नानी. मतलब क्या? मम्मीज मम्मी. हाँ या ना? Yes, Yes. ma'am. ओके. तो यहाँ पे नेफ्यू है, नेफ्यू की मम्मी मतलब यहाँ पे आई ना मदर. Yes, ma'am. बराबर है. वो इनकी क्या है? वो इनकी क्या है? इधर भी मदर. बराबर है ना? मतलब ये नेफ्यू की जो ममा है उसकी ममा जो है वो कौन है? द लेडी इन द फोटोग्राफ. हाँ या ना? Yes, ma'am. हाँ या ना? सो नाउ टेल मी हाउ वुड मैन कहाँ पे है? वो मैन कहाँ पे है? The lady in the photograph is my nephew's maternal grandmother. बराबर है ना? तो अब बताओ इनका रिलेशन क्या रहेगा? बोलो बोलो. How is the man related? ये जो लेडी है बराबर है. Mother. और मैन का रिलेशन क्या रहेगा? Mother-in-law. सॉरी, Mother-in-law. मदर इन लॉ. आर यू श्योर? क्वेश्चन को पढ़ते हैं. मैन पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ. फोटो लिया. आई एम द मैन. ओके. मैन ने फोटो देख के बोला कि ये जो है ना आपको जो दिख रही है वो मेरे पोते की नानी है. मतलब मेरी कौन? Mother-in-law. मदर. सोचो सोचो. यहाँ पे देखो क्लियर कट दिख रहा है आपको कि वो क्या है? Mother. Mother. बराबर. कंफ्यूज होने का कोई सवाल ही नहीं उठता. ओके. यस. सो द आंसर इज मदर. सी आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सा क्रिटिकल है, बट हम प्रैक्टिस करेंगे और इन डायग्राम्स को ठीक से समझेंगे तो हमको ये जरूर 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 समझ आएगा. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. यस. अ वुमन इंट्रोड्यूसेस अ मैन as the son of the brother of her mother. How is the man related to the woman? तो चलेंगे. चलो पहले समझते हैं मैन को कैसे उसने डिस्क्राइब किया है. A woman introduces a man as the son. अब ये कौन है मैन? ये मैन है. ओके. सो ये सन है. इसका साइन क्या रहेगा? साइन क्या रहेगा? Plus. राइट. ये जो है Plus. a man as the son of the brother of her mother. मतलब ये नेक्स्ट जनरेशन हुआ. हाँ या ना? क्या बोला है? सन ऑफ द ब्रदर. अब सन है तो इसके क्या रहेंगे? फादर. हाँ या ना? इसके फादर क्या है? ब्रदर. Brother. किसके ब्रदर है? किसके ब्रदर है? इनके मम्मी के. हाँ या ना? मम्मी के. हाँ या ना? बराबर है. अगर ये
यहाँ पे है, अगर सी अंडरस्टैंड क्या बोला है, अ मैन, ये जो मैन है वो कौन है, सन, किनके सन है, इनकी मम्मी के भाई के, मतलब वुमन कहाँ पे आई, क्या वो यहाँ पे आई, क्योंकि वो अपनी मम्मा के बारे में बात कर रही है, हाँ या ना, Yes, ma'am. yes or no, see a man, a woman introduces a man as the son, ये man है, he is the son, किसका son है, ब्रदर का, ब्रदर किसका है, मदर का, मतलब अगर ये सन है तो इसका फादर है, अगर ये फादर है तो ये ब्रदर है, बराबर, ये किसका ब्रदर है, Sir. ये किसका ब्रदर है, Mother का. मदर का, मदर है मतलब ये इस जनरेशन में आई ना, अगले वाले जनरेशन में, हाँ या ना, Yes, ma'am. तो हमें क्या देखना है, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमन, बताओ, बोलो बोलो, Brother. सोच के बोलो, Uncle. Uncle. सेम जनरेशन है, ये अपनी माँ है, ये अपने मामा है, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मदर और उनका ब्रदर, बराबर ना, Yes, ma'am. तो मतलब ये कौन हुए, अंकल Uncle. अरे ये तो मामा का बेटा हुआ ना, मामा सेम जनरेशन में वुमन और मैन सेम लेवल पे, तो ब्रदर मतलब हुआ अपने ना मैम. मामा का लड़का हुआ, हाँ या ना, Yes, ma'am. तो ये अपना क्या हुआ, कजिन हुआ ना, Yes. राइट, Yes, ma'am. don't go to these alternatives which are given in the module, this is wrong, here alternative should be cousin, Hmm. okay, Yes, ma'am. shall we go ahead, Yes, ma'am. let's go Yes. ahead to the next question. Prasanna said, this girl is the wife of the grandson of my mother, okay, प्रसन्ना एक गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है, तो पहले गर्ल का जो रिलेशन है वो लिख लेते हैं, दिस गर्ल, तो मैं गर्ल की बात करती हूँ, तो चलो ये गर्ल है, अगर मैं गर्ल बोलूं तो उसका साइन माइनस हुआ, हाँ या ना, इज द वाइफ मतलब ये बीवी है, चलो ठीक है, ओके सॉरी, तो ये बीवी है, अगर ये बीवी है तो किसकी बीवी है, ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, अगर ये बीवी है तो इसका एक हस्बैंड रहेगा, हाँ या ना, Yes, ma'am. अगर इसका हस्बैंड रहेगा मतलब ये कौन है, सन है, किसका सन है, ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, मतलब इसका सन है और इनकी मदर, हाँ या ना, Yes, ma'am. हाँ या ना, Hmm. बराबर है ना, अब प्रसन्न ने क्या बोला, प्रसन्न कहाँ पे बैठता है वो देखते हैं, द गर्ल मतलब ये जो लड़की है, इज द वाइफ, ये वाइफ है, बराबर है किसकी, अपने बेटे की, ये बेटा कौन है, ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, मेरे मम्मी का, अगर मैं प्रसन्न हूं, मेरी मम्मी का पोता, मतलब मेरी मम्मी का बेटा तो मैं हूं, बराबर है ना, Hmm. और ये लड़का मेरा बेटा है, मतलब क्या मैं बोलूं कि प्रसन्न यहाँ पे आता है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. करेक्ट, Yes, ma'am. टेल मी हु इज प्रसन्न टू द गर्ल, Father-in-law. श्योर, Hmm. Yes, ma'am. एवरीवन, No, ma'am. Father-in-law. सॉरी, ब्रदर और सिस्टर का तो सवाल ही नहीं होता क्योंकि जनरेशन है, बराबर है ना, जनरेशन None क्या, of this आएगा मैम. none of these आएगा, यहाँ पे फादर इन लॉ इज द राइट आंसर, Correct. okay, yes, let's go ahead with the next question. Vimal's mother is the only daughter of my mother, क्या बोला गया है, Vimal's mother is the only daughter of my mother, how is Arun related to Vimal, तो ठीक है, चलो पहले विमल का लिखते हैं फिर अरुण को उस रिलेशन में हम बिठाते हैं, क्या बोला है, Vimal's mother, तो एक आया विमल, अब इसका जेंडर स्पेसिफिकली तो हमें दिया गया नहीं है, ओके, अब ये विमल का क्या हुआ बताओ मुझे, विमल्स मदर, Mother. मदर, इनकी मदर, प्लस साइन, सॉरी माइनस साइन, इज द ओनली डॉटर, मतलब ये कौन है, डॉटर है,
daughter. किनकी डॉटर है? ऑफ माय मदर, मतलब ये ग्रैंड मॉम हुई, Hmm. साइन माइनस, बराबर। ऑफ माय मदर बोला है, बराबर है ना, मतलब ये जो है वो किसकी मदर है? विमल की मदर है, हाँ या ना? Yes, ma'am. तो विमल की मदर है तो विमल भी इधर आएगा, हाँ या ना? ओ सॉरी 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 सॉरी, विमल No, नहीं, ma'am. अरुण Arun, Arun. Arun. सॉरी, No, Arun. विमल नहीं, अरुण आएगा, बराबर है ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो बताओ, हाउ इज अरुण रिलेटेड टू विमल? Uncle. Uncle. श्योर एवरीवन? Yes, ma'am. श्योर? अंकल? Yes, अगर ma'am. मैं कहूँ ये Yes, गलत ma'am. जवाब है तो? मैटरनल अंकल। वेरी गुड, मैटरनल अंकल। ये कौन है? Mhm. अरुण और मदर कौन है? भाई बहन, Yes, ma'am. बराबर है ना? तो विमल के तो मामा हुए ना, Yes, ma'am. Mhm. राइट? Yes. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। यस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। पूरा फोकस, थोड़ा सा ट्रिकी है। A woman going with a boy is asked by another woman about the relationship between them. मतलब क्या? एक लड़की एक औरत एक लड़की को लेके जा रही है, तो दूसरी उसकी कोई फ्रेंड मिलती है, और पंचायती तो होती है औरतों को बहुत, तो वो बोलती है अरे ये कौन है, नया देख रही हूँ, कोई मेहमान आए हैं क्या आपके घर पे? तो वो क्या बोलती है? The woman replied, my maternal uncle and the uncle of his maternal uncle is the same. Okay, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रिलेशनशिप है। क्या बोला है? Woman replied, my maternal uncle and the uncle of his maternal uncle. तो पहले बॉय का रिलेशनशिप लिखते हैं, बराबर है? There is a boy, हाँ या ना? Yes, ma'am. बॉय बोले तो प्लस, हाँ या ना? Yes, ma'am. Uncle of his maternal uncle, पहले हम बॉय का रिलेशनशिप लिख रहे हैं, हाँ? Uncle of his maternal uncle, maternal uncle मतलब मम्मी का भाई, हाँ या ना? Hi. Yes, ma'am. एक मदर है, इनकी मदर को एक ब्रदर है, हाँ या ना? Yes, ma'am. ओके, इनकी मदर को एक ब्रदर है। अंकल ऑफ हिज मैटरनल अंकल, अंकल मतलब पापा का या मम्मी का भाई, हाँ या ना? एक्चुअली Yes, मम्मी का भाई होता तो मैटरनल अंकल लिखा होता, यहाँ पे सिर्फ अंकल लिखा है, मतलब पापा का भाई, काका या चाचा, हाँ या ना? Yes, Yes, ma'am. मतलब इन ब्रदर को है एक फादर, बराबर है? इन फादर को है एक ब्रदर, बराबर है ना? yes, ma'am. मतलब ये बन गए काका, करेक्ट है ना? ये बन गए मामा। Yes. क्या बोला है? अंकल ऑफ हिज मैटरनल अंकल, इनकी एक मामा है, बराबर है ना? सॉरी, ये मामा हुए, ब्रदर मामा हुए, बराबर है ना? इनके मामा, ये कौन है? ये कौन है? मेरे काका है, हाँ या ना? क्या बोला है? इज माय मैटरनल अंकल, मतलब ये जो ब्रदर है इनके फादर के, वो कौन है? मेरे मैटरनल अंकल है, बराबर है? द वुमन, आई एम अ वुमन, वुमन क्या बोले? कि मेरे मैटरनल अंकल, और बॉय के कौन? अंकल ऑफ मैटरनल अंकल। तो हमने बॉय का रिलेशन लिख दिया, एक बॉय है, इनका मैटरनल अंकल मतलब मामा, तो इनकी एक मामा है, इनकी मामा के एक भाई है, बराबर है ना? हाईलाइटेड विद सम अदर पेन। ओके, इनका बॉय है, बॉय की एक मदर है, मदर पे एक ब्रदर है, मतलब इन ये कौन हुआ? मैटरनल अंकल हुए। इनका कौन? मैटरनल अंकल के अंकल, बराबर है ना? तो मैंने क्या किया? इनके अंकल का रिलेशन मतलब क्या? पापा के भाई, तो इन ब्रदर को एक भाई है, सॉरी ब्रदर को एक पापा है, इन पापा को एक भाई है, मतलब काका, हाँ या ना? ये काका जो है इस बॉय के, ये मेरे कौन है? आई एम द वुमन, तो मेरे कौन है? मैटरनल अंकल, हाँ या ना? मैटरनल अंकल मतलब मामा, मतलब इसकी एक बहन है,
ब्रदर की एक बहन है, बराबर है ना, जो मेरी मदर है। नहीं समझ में आ रहा? No, ma'am. Okay, I'll draw this once again for all of you. Okay? Yes, full focus on the screen. मैं फिर से समझाती हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड है ये। क्या बोला गया है हमें? My maternal uncle, मतलब I am the woman. Okay, let's go to a simple way. I am the woman. बराबर? मेरे ma'am. maternal uncle मतलब मेरे मामा, Yes, ma'am. मेरे मामा मतलब I have a mother. मम्मी के भाई। इस मदर को एक ब्रदर है, बराबर है? Yes, ma'am. ओके, ये जो ब्रदर है, ये जो ब्रदर है, वो इस बॉय के कौन लगते हैं? अंकल ऑफ हिज मैटरनल अंकल इज द सेम, बराबर है ना? मतलब मेरे मामा इसके अंकल ऑफ मैटरनल अंकल है, बराबर है या नहीं? बराबर है। तो ये जो है, ये कौन है? इसके अंकल है, बराबर? Yes, ma'am. अंकल किसके अंकल है? मैटरनल अंकल के अंकल है, बराबर है ना? Yes, ma'am. मतलब पहले समझते हैं। देयर इज अ बॉय, बराबर है? ये बॉय का एक मैटरनल अंकल है। मैटरनल अंकल मतलब मामा, मतलब मामा है, इन मदर को एक ब्रदर है, बराबर है? Yes, ma'am. ऑफ हिज मैटरनल अंकल, तो मैटरनल अंकल के ये कौन लगते हैं? अंकल लगते हैं, बराबर है? कौन लगते हैं? इन ब्रदर के वो कौन लगते हैं? अंकल लगते हैं। तो ठीक है, चलो, अगर वो अंकल लगते हैं, अंकल मतलब कौन? काका? Yes, ma'am. काका Yes, मतलब काका मामा ये। का भाई, बराबर है? मतलब ऊपर का जनरेशन पापा। और फादर फादर के भाई। ये सेम है, मतलब वुमन का ये सेम है और बॉय का ये सेम है। क्लियर? समझ में आ रहा है? समझ में आया क्या? अब एक बार समझ लो, डायग्राम ड्रॉ कर लो अपने पास, फिर थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। कुछ चैप्टर्स डिफिकल्ट होना तो बनता है ना, सब कुछ एकदम इजी रहा तो मजा आएगा क्या? नहीं No, आएगा। ma'am. Okay, how is the lady related with the boy? Okay, तो इस Brother, sister? और इस बॉय का रिलेशन निकाला है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं? जनरेशंस डिफाइन कर लेते हैं। ये जनरेशन, हाँ या ना? हाँ या ना? Yes. बराबर है? मतलब ये वुमन एक्चुअली कौन है वो समझते हैं। एक लड़का है, एक लड़की की मदर है, बराबर है ना? उस मदर की ब्रदर है, ब्रदर के फादर है, फादर के भाई है। ये उस वुमन के मेरे कौन लगते हैं? मेरे मामा लगते हैं, बराबर है? मतलब कैसे कि वुमन और मदर एक लेवल पे है। Can I Yes, say they are ma'am. sisters? Yes, ma'am. Can I say they are sisters? Yes. Okay, तो अगर ये सिस्टर्स है तो ये बॉय की कौन हुई? मासी को क्या बोलते हैं? Aunt. आंट बोलते हैं। और बहन की बेटी को क्या बोलते हैं? Nephew. Nephew. So what is the relationship? Aunt and nephew. Understanding? Yes, ma'am. तो बाकी सब तो बहुत सिंपल था, बस एक ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसलिए मैंने उसको लास्ट में लिया है। ओके, थोड़ा डिफिकल्टी बनता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो विदाउट हेजिटेशन। मैम इज ऑलवेज देयर फॉर आवर डियर स्टूडेंट्स। अंडरस्टैंडिंग? Yes. राइट? और थोड़ा डिफिकल्ट लेवल तो बनता है, इसलिए मैंने ब्लड रिलेशंस थोड़ा एंड में रखा है। अब कल हम लोग करेंगे एक अनदर मेजर चैप्टर, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, व्हिच विल वाइंड अप आवर syllabus. Okay, my dear students? Yes, ma'am.